قصبے پلوامہ میں آج سیکیورٹی فورسز نے ایک بڑے ممکنہ حادثے کو ٹال دیا ہے۔ فورسز نے ملیٹنٹوں کی جانب سے نصب کی گئی بارودی سرنگ کو ناکارہ بنا دیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق قصبے پلوامہ کے سرکولر روڈ پر ٹہاب کراسنگ پر آج صبح سیکیورٹی فورسز کی گشتی پارٹی کو کاربن پیپر میں رکھی مشکوک شے ملی۔ اس کے بعد فوج کی 55 RR CRPF اور پلوامہ پولیس نے پورے علاقے کا محاصرہ کیا۔ پولیس کی خصوصی بم ناکارہ بنانے والی ٹیم کو طلب کیا گیا۔ ٹیم نے کافی مشقت کے بعد بارودی مواد کو ناکارہ بنا دیا۔ ملیٹنٹوں کی جانب سے نصب کی گئی IED میں تقریباً 4 کلو بارودی مواد موجود تھا۔ اس دوران سیکیورٹی فورسز کی مشترکہ ٹیم نے آس پاس کے میوہ باغات میں تلاشی کارروائی بھی انجام دی۔ سرکولر روڈ پر ٹہاب کراسنگ پر روزانہ CRPF اور پولیس کی جانب مشترکہ ناکہ قائم کیا جاتا ہے۔ مانا جا رہا ہے کہ اسی کو نشانہ بنانے کے لیے ملیٹنٹوں نے یہ بارودی سرنگ نصب کی تھی۔ ترال میں نماز جمعہ کے بعد فورسز نے آب گھر کے مقام پر محاصرہ کر کے تلاشی کارروائی انجام دی۔ اس دوران لوگوں کو قطاروں میں رکھ کر ان کی تلاشی لی گئی، تاہم سرچ کے دوران کسی کی گرفتاری عمل میں نہیں لائی گئی۔ کچھ دیر تک تلاشی کارروائی کے بعد محاصرے کو ہٹایا گیا۔ سوپور پولیس نے ملیٹنٹوں کے نام پر جبری وصولی کرنے والی گینگ کا پردہ فاش کر دیا ہے۔ ان کے قبضے سے مشتبہ مواد برآمد کر لیا گیا ہے۔ چکروڈی خان کے ہلال احمد لال باب صاحب کے تحلیل نثار اور عمران عزیز گلکار کے علاوہ چنکی پورہ کے مدثر حسین گنائی کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ چند دن پہلے ہائی لینڈ کالونی سوپور کے محمد اشرف لو نے تحریری شکایت کے ساتھ پولیس سے رجوع کیا تھا۔ انہوں نے بتایا تھا کہ ماسک لگائے چند لوگ ان کے کلینک میں گھس آئے اور کہا کہ لشکر اور جیش نے ان کو ختم کر دینے کا وارنٹ جاری کر دیا ہے۔ اگر 5 لاکھ روپے ادا نہیں کیے گئے تو انہیں ختم کیا جائے گا۔ پولیس نے ملزمین کے قبضے سے لیٹر پیڈ اور پرنٹر بھی ضبط کر لیا ہے۔ ملزمان میں ایک ہلال احمد سرنڈر ملٹنٹ بتایا گیا ہے۔ شمالی کشمیر میں پٹن کے کھور شیر آباد میں کل جموں کشمیر بینک میں نامعلوم بندوق برداروں کی جانب سے چھینی گئی رائفل اور گاڑی کنزر کے وسن کراسنگ پر ایک سیب کے باغ میں برآمد ہوئی ہے۔ اطلاع ملتے ہی کنزر اور پٹن پولیس جائے واقعے پر پہنچے۔ اسی دوران پولیس کو کارہامہ کے شیخ پورہ میں ان تینوں افراد کی استعمال شدہ PPE کٹس بھی برآمد ہوئی ہے۔ سیکیورٹی فورسز نے دونوں مقامات پر تلاشی کارروائی انجام دی۔ بینک میں لوٹ میں ملوث بندوق برداروں کو پکڑنے کے لیے FSL کی ٹیم نے بھی نمونے حاصل کیے۔ سیکیورٹی فورسز نے کتوں کا بھی استعمال کیا۔ واضح رہے کہ کل کھور شیر آباد میں قائم جموں کشمیر بینک میں نامعلوم بندوق برداروں نے 2,86,000 روپے اڑا لیے تھے۔ وہ بینک گارڈ کی رائفل اور ایک راہگیر کی گاڑی لے کر بھی فرار ہو گئے تھے۔ اس طریقے سے کل جموں کشمیر بینک میں کھور شیر آباد میں بینک ڈکیتی ہوئی ہے اور نامعلوم مشتبہ بندوق برداروں نے جہاں سے وہاں ایک راہگیر کی گاڑی چھین لی تھی اور وہاں 2,86,000 روپے بھی چھین لیے تھے اور ایک بینک گارڈ جو ہے ان سے رائفل بھی چھین لی تھی اور انہوں نے یہاں پہ یہ گاڑی چھوڑ دی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ گاڑی جو ہے یہ گاڑی انہوں نے چھوڑ دی جو راہگیر سے انہوں نے چھین لی تھی۔ اور ساتھ ہی یہ بھی بتا دوں میں جو انہوں نے PPE کٹس جو استعمال کیے تھے انہوں نے وہاں پہ جو کارہامہ شیخ پورہ جو گاؤں تھا اور وہاں پہ انہوں نے وہ کٹس جو ہے وہاں پہ چھوڑ دیے تھے اور اس دوران جو سیکورٹی فورسز نے جو سراغ کتے جو ہیں ان کا استعمال کیا گیا ہے اور یہاں پہ FSL کی ٹیم بھی پہنچی تھی۔ انہوں نے یہاں پہ نمونے حاصل کر لیے ہیں اور اس طریقے سے میں آپ کو بتا دوں اور جو بھی اس میں ملوث افراد ہیں اور ان کو کیفر کردار تک پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ منیر حسین، نیوز 18 اردو، کنزر۔ ترال کے DDC ممبر ڈاکٹر ہربخش سنگھ نے دعویٰ کیا ہے کہ انہیں کووڈ کا ٹیکہ دیے بنا COVID-19 سرٹیفکیٹ جاری کر دیا گیا۔ وہ اس واقعے کے بعد حیرت زدہ ہیں۔ ڈاکٹر سنگھ نے اس کی مکمل تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ نیوز 18 اردو کے ایسوسیٹ ایڈیٹر شبیر احمد نے ڈاکٹر ہربخش سنگھ سے بات چیت کی۔ پہلے مجھے ایک کال آئی ترال سے تو انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب ایسے آپ کا کل ویکسینیشن کا ڈیٹ ہے تو آپ کی کل ویکسینیشن کرنی ہے۔ کیونکہ ہمیں DC آفس والوں نے کوئی ڈاٹا وغیرہ مانگا تھا تو مجھے لگا کہ میرا انرولمنٹ کہیں ہوا ہے تو میں نے ان کو کہا کہ میری کل مصروفیات ہیں کچھ تو میں کل نہیں پہنچ پاؤں گا۔ تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے سر ہم نیکسٹ ڈیٹ آپ کو دیں گے تو اس دن آپ کو آ کے ویکسینیشن کرنا پڑے گا۔
کہ مجھے ایک میسیج آیا ہوا ہے, ڈیئر ڈاکٹر ہربخش سنگھ ساسن, یو ہیو سکسیزفلی بین ویکسینیٹڈ ود یور 1 ڈوز ود کوویشیلڈ آن 18/4/2021 at 7:37 PM. یو مے ڈاؤن لوڈ یور ویکسینیشن سرٹیفکیٹ. تو میں نے کہا, میں تو حیران ہو گیا, میں نے کہا یہ کیا ہے. میری حیرانگی اور بھی بڑھ گئی کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کا اس مرکز پہ اتنے بجے اس بندے کے تھرو آپ کا یہ ہوا ہے. انجیکشن کا بیچ نمبر بھی ہے جو لگایا گیا ہے, اور ہاں یہ بتا رہے ہیں پلوامہ DH4, اور بتا رہے ہیں کہ نیکسٹ ڈیٹ جو آپ کی ہے, نیکسٹ ڈیو ڈیٹ سیکنڈ کے لیے, ہاں بٹوین 16 مئی اینڈ 13 جون. بینگ اے پبلک ریپرزنٹیٹیو ڈاکٹر بھی ہوں, تو مجھے لگا مجھے یہ وائس, کیونکہ یہ جو چیز ہے کہ میں بھی تھوڑا اگنور کر گیا تھا میسیج دیکھ کے, کافی لوگوں نے کی ہوگی. اس میں ایک تھارو انکوائری بنتی ہے, ایک انویسٹیگیشن بنتی ہے, ہیومن لائف کا معاملہ ہے. کیونکہ اگر میں کل انجیکشن لگوانا چاہتا ہوں ویکسین, تو مجھے نہیں آنر کریں گے کیونکہ میرا آلریڈی ہو چکا ہے. طریقہ ہے ویکسین لگوانے کا, وہ یہ ہے کہ آپ سے کارڈ لیا جاتا ہے, وہ جب ایکسیپٹ ہوتا ہے کہ ہاں جی اس کا کارڈ ایکسیپٹیبل ہے, پھر ایک OTP آتا ہے. OTP جب وہ دیتے ہیں اس کے بعد ویکسینیشن لگتی ہے. تو یہ آپ کے معاملے میں کوئی آپ نے کارڈ شیئر کیا تھا, OTP شیئر کیا؟ نہیں, میں نے کوئی OTP شیئر نہیں کیا, نہ مجھے کوئی OTP آیا آج تک. جب میں نے کل ڈاؤن لوڈ کیا تب مجھے ایک OTP آیا. ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے ہمارا کچھ شیئر نہیں ہوا تھا. DC آفس والوں نے, بینگ ہمارا پیرنٹ آرگنائزیشن اس وقت ہے, DC آفس پلوامہ, ہاں DC آفس پلوامہ, انہوں نے ڈیٹیلز لی تھی ہم سے, سارے DDC ممبران سے انہوں نے ڈیٹیلیں لی تھی. مجھے لگتا ہے یہ ڈاٹا وغیرہ جو بنا کے بیٹھ کے بنایا جاتا ہے, تو یہ اس میں کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہے. یہ کرمنل ہے. میں کہیں نہ دیکھو, جو بیچ نمبر لکھا ہوا ہے, سب سے پہلے وہ انجیکشن ڈھونڈنا چاہیے, اس بیچ نمبر کا انجیکشن گیا کہاں. LG ایڈمنسٹریشن کو, ڈپارٹمنٹ کو ایک سیریس نوٹ لینا چاہیے, کیونکہ مجھے یقین ہے کہ جو میرے ساتھ ہوا یہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہوا. یہ ایک کرمنل آفینس بنتا ہے, ایک کرمنل کیس ہے, اور اس پہ جانچ ہونی چاہیے. اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں جی یہ ایک ہیومن ایرر ہے, یہ ہیومن ایرر نہیں ہو سکتا, کیونکہ طریقہ یہ ہے کہ جب آپ کا کارڈ ایکسیپٹ ہوتا ہے, آپ کا OTP آتا ہے, آپ OTP دیتے ہیں, کارڈ کی ایکسیپٹیبلٹی تو ہوتی ہے, پھر آپ کو جا کے کہیں لنک آتا ہے اور وہیں آپ کا انجیکشن لگتا ہے. اگر اس طرح کی ایرر ہیں تو ڈاکٹر صاحب سیدھے طور بتا رہے تھے کہ ایسے کئی لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے. ہمارے پاس کئی بار ایسے میسیجز آتے ہیں جو ہم اگنور کر جاتے ہیں. کیا ایسا بڑے پیمانے پہ ہو رہا ہے؟ اس کی جانچ ہونا لازمی ہے. جہانگیر عزیز کے ساتھ شبیر احمد, نیوز 18 اردو, سری نگر. ڈاکٹر ہربخش سنگھ کو سرٹیفکیٹ اجرا کرنے کے معاملے میں محکمہ صحت پلوامہ نے تحقیقات شروع کر دی ہے. اس مسئلے پر محکمہ صحت پلوامہ نے تحقیقات کا باضابطہ طور پر آغاز کر دیا ہے. متعلقہ حکام کا کہنا ہے کہ اس بات کی مکمل جانچ ہوگی کہ یہ محکمے کی کوتاہی ہے یا پھر انہوں نے ویکسین لگایا ہے. ہم پوری طرح سے انویسٹیگیشن کریں گے, مگر ایسا کچھ نہیں ہے کہ کوئی فراڈ ہوتا ہے. ان کے ڈیٹیلز جو ہیں, ان کی پین کارڈ ہے, فون نمبر ہے, وہ آلریڈی ملتے ہیں, اس کے بغیر یہ سب نہیں ہو پاتا ہے. تو اسٹل ویل ٹرائی ٹو لک انٹو دا میٹر, ایکچوئل انویسٹیگیشن کریں گے, ہم دیکھیں گے کہ مسئلہ کیا ہوا ہے. کوئی بھی فراڈ اس میں نہیں ہو سکتی ہے, کیونکہ جب تک فون نمبر نہیں ہوگا, ایکچوئل ڈیٹیلز نہیں, یہ چیزیں خود سے کوئی بھی چیز کوئی جنریٹ نہیں کر سکتا ہے. تو ایسے ہم نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ ویکسین ہوا ہے نہیں ہوا ہے, یہ ہم انویسٹیگیٹ کریں گے. تو جب بھی ہمارے پاس کلائنٹ آتے ہیں سٹیزن, ہمارے پاس ہم پہلے ان کو آدھار کارڈ چیک کرتے ہیں. آدھار کارڈ پہ ہم پہلے ہی ان کا DO بھی دیکھتے ہیں. بلو 46 جو آتے ہیں ہم ان کو ایلو نہیں کرتے, کیونکہ اس کے لیے دوسرا نکلا ہے 1 مئی کے بعد. اور جو ہمارے پاس انڈر ایج یہ والے آتے ہیں ابو 46, ان کو ہم ایلو کرتے ہیں, اور آدھار ہم لنک کرتے ہیں اس کے ساتھ, جو ہمارا یہ پورٹل ہے اس پہ کرتے ہیں. تو ویکسین کووڈ کے بڑھتے ہوئے کیسوں کے سبب ضلع گاندربل کے لوگ بھی گھبرائے ہوئے ہیں, لیکن ہر جگہ ضابطوں اور قاعدوں کی پابندی نہیں ہو رہی ہے. رمضان کے دوسرے جمعے کو گاندربل سمیت ضلع کے دیگر مقامات پر مرکزی مساجد میں باجماعت نمازیں ادا کی گئی. عبادات کے دوران لوگوں نے ایک دوسرے سے ضروری فاصلہ برقرار رکھا. مساجد کمیٹیوں نے بھی اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ SOPs لاگو کی جا سکے, لیکن بدقسمتی سے مساجد کے باہر کووڈ SOPs کی خلاف ورزی دیکھی گئی. معاشرے کا ایک طبقہ لوگوں کی طرف سے اس طرح کے طرز عمل سے پریشان ہے.
बाज़ाब्ता टेप्स लगाए हैं, बाज़ाब्ता निशान लगाए हैं मस्जिद के अंदर, ताकि लोग दूर दूर बैठें। और ये बीमारी जो है बहुत मुहलिक बीमारी है, इसे परहेज़ करने की एहतियाती तदाबीर जो है, जो वक्तन मुवफ़्फ़क़तन इंतज़ामिया की तरफ से या इमाम साहिबान की तरफ से इजरा होते हैं, उन पर सख्ती से अमल करने की ज़रूरत है। बाहर तो होती है, इसकी थोड़ी दर्जा उड़ रही है SOPs की, तो क्योंकि लोग इस पर पूरा ध्यान नहीं दे रहे हैं, इसकी दर्जा उड़ रही है बाहर। अलबत्ता मस्जिदों में अब ठीक हो रहा है। तो वो तो हर एक को ये सोचना है कि ये सेहत का मामला है, क्योंकि कश्मीरी एक मुहावरा है जू और जहां और इसका अगर मैं उर्दू में तर्जमा करूंगा तो वो तंदुरुस्ती हज़ार नियामत है। मैं हज़ार नियामत नहीं बोलूँगा कि मैं करोड़ों नियामतों से बेहतर तंदुरुस्ती है। तो अगर इंसान को तंदुरुस्त रहना है, अपने बच्चों को, अपने बुजुर्गों को हमें महफूज रखना है इस बीमारी से, तो हमें SOPs का खास ख्याल रखना चाहिए। बहुत ही मुश्किलात आते हैं, पूरा घर आपका इन्वॉल्व हो जाता, पूरा आपका सोसाइटी, आपकी कम्युनिटी इन्वॉल्व हो जाती। इसलिए मेरी फिर से आपके चैनल की वसादत से गुजारिश होगी, इंतज़ामिया से, इन इमाम साहिबान से और जो भी सोशल वर्कर्स है, कि इन चीज़ों का खास। जम्मू की सबसे बड़ी राशन मार्केट में आज मंडी के सदर ने पाबंदियों में सख्ती कर दी है। मास्क के बिना मंडी ना आने की हिदायत दी गई है। छोटे ताजरों की भीड़ यहां अपनी दुकानों के लिए सामान खरीदती नजर आई। मंडी फेडरेशन और गोदामों के सरबराहों ने फैसला लिया है कि हफ्ते में 2 दिन और महीने में 8 दिन ये मंडी बंद रहेगी। इसलिए अब यहां मार्केट में भारी भीड़ देखी जा रही है। ऐसी सूरत हाल काफी खतरनाक साबित हो सकती है। पहले पहल की है कि नो मास्क नो एंट्री, जो है जो भी अंदर आएगा मास्क डाल के आएगा और मास्क के बिना जो है एंट्री नहीं होगी। तो उसके बाद हमने जो है अपने दुकानदारों को कहा है कि ऑन टेलीफोन ही आप डिमांड लो और उनके सामान जो है उनके घरों तक पहुंचाओ और अपने दुकानों तक पहुंचाओ। और कल से हमारा लॉकडाउन है, हर सैटरडे और संडे को बंद रहेगा और जब तक इस वेव को प्रकोप इसका जारी रहेगा तब तक लॉकडाउन जारी रहेगा। और आपको ये भी बता दें आपके माध्यम से, हमारी दुकानें जो है मंडे को सुबह 9 बजे खुलेंगी और शाम को 6 बजे बंद हो। डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग डॉक्टर पीयूष सिंगला ने चलो टीका लगवाए मुहिम का आगाज किया है। अनंतनाग में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डीसी ने कहा कि हालिया दिनों वैक्सीनेशन की रफ्तार में इजाफा हुआ है। वैक्सीनेशन के हदफ को 6,000 से बढ़ाकर 13,000 करने की कोशिश की जा रही है। डॉक्टर सिंगला ने अपील करते हुए कहा कि ये वैक्सीन बिल्कुल महफूज है। डॉक्टर सिंगला ने वैक्सीन के खिलाफ गलतफहमियों और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। वहीं उन्होंने जो खिलाफ वर्जी करेंगे उनकी सख्त कार्रवाई की जाएगी, इसका इंतबाह भी दिया है। लोगों से भी गुजारिश की है कि वो ऐसे अनासर की तरफ तवज्जो न दें। लॉन्च की गई है चलो टीका लगवाएं, मतलब कि इस जो टीका उत्सव है उसका हम सब हिस्सा बने और किसी बिना शक के हम आगे बढ़कर वैक्सीनेशन करवाएं। मैं आपके माध्यम से सभी हमारे PRI मेंबर्स, लोकल रिलीजियस लीडर्स और हाफ कमेटी के मेंबर्स, उन तक ये अपना मैसेज, अपना पैगाम पहुंचाना चाहता हूं कि लोकल लेवल पे लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए आगे बढ़ाएं, ताकि इस टाइम पे जो हमारे हाथ में एक टूल है वो है वैक्सीन, जिससे हम कोरोना को लड़ सकते हैं। नो डाउट कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, मास्क पहनना, 2 गज की दूरी रखना, हाथ साफ रखना, ये भी जरूरी। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। कुपवाड़ा कस्बे में जुज़वी लॉकडाउन को लेकर ट्रेडर्स फेडरेशन कुपवाड़ा के चेयरमैन शौकत मसूदी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। उन्होंने सरकार के इस फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि मार्केट बंद रखने से कोविड पर कंट्रोल नहीं हो सकता है, बल्कि ये दुकानदारों के साथ ज्यादती है। उन्होंने कहा कि मार्केट में लोगों का एक सैलाब फिर भी नजर आता है। उन्होंने फैसले पर नजरसानी की मांग की। जिला राजौरी के नौशहरा टाउन में दुकानदारों ने इंतजामिया के फैसले के खिलाफ एहतजाज किया। दुकानें ऑड इवन बुनियाद पर खोलने का इंतजामिया ने हुक्म दिया है। दुकानदारों ने कहा कि फैसला लेने से कबल उनकी राय नहीं ली गई। दुकानदारों के मुताबिक उन्हें सरकारी इंतजामिया का फैसला कबूल नहीं है। दुकानदारों ने कहा कि वो अपनी सहूलत से दुकानें खोलेंगे और बंद करेंगे। दुकानदारी करावांगे, असं दबाने की कोशिश की गई है। अज भी अगर असने आर्डर किया पहले साहब की चाय ना सी गए बिठा लिखा गलबात कर, असने मुलाजम ने जितने बैठे नहीं थे अफसर बैठे ने सारे मुलाजम, इन्होंने असा गल करनी चाहिए सी, डिपार्टमेंट नाल गल बनी सी, 4 बंदे नाल गल करनी सी।
ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन कुपवाड़ा ने मुसाफिर गाड़ियों के लिए 50% सवारियों से मुतल्लिक फैसले को ट्रांसपोर्ट्स के साथ नाइंसाफी करार दिया है। उनका कहना है कि ट्रांसपोर्टर पहले से ही खसारे में मुब्तला है। नॉर्थ कश्मीर कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद शफी मीर ने सरकार से इस फैसले पर नजरसानी की अपील की है। दे रहे हैं, अभी भी दे रहे हैं और देंगे भी, लेकिन साथ साथ गवर्नमेंट को हमारा भी सोचना है कि 50% गाड़ी में, जैसे ही अगर सोमो में 5 सवारी बैठेंगे तो उनको किराया जो बनता है उसमें तो उतना तेल खर्चा आता है तो उसमें वो भी पूरा हमें नहीं होता। इसलिए हम एलजी साहब से जितने भी हजरात हैं या अपने जो मिनिस्टर्स हैं, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स हैं, उनसे गुजारिश कर रहे हैं कि इसके कमिश्नर सेक्रेटरी साहिबान, प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहिबान, सभी जो भी है जो इस वक्त गवर्नमेंट चला रहे हैं, कि हम उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस पर जल्द से जल्द कोई फैसला। बांडीपुरा में कोविड एसओपीज पर अमल दरामद कराने के लिए इंतजामिया मुतहरिक हो गई है। मार्केट का एक साइड खुला रखने और दूसरा बंद रखने के फॉर्मूले पर सख्ती से अमल दरामद कराया जा रहा है। तहसीलदार बांडीपुरा मुबशिर सलीम नाजकी की क़यादत में एक टीम ने उस वक्त 2 दुकानों को सील किया जब मुआयने के दौरान पाया गया कि इन दुकानदारों ने कोविड के वैक्सीन नहीं लगाए थे। ऐसे लोगों पर भी जुर्माना आयद किया गया जिन्होंने मास्क नहीं पहनी थी। छतरगला में टनल की तामीर का काम अभी तक शुरू नहीं हुआ है। ये मंसूबा पूरा होगा तो इस रास्ते पर हर मौसम में गाड़ियों की आमदोरफ्त मुमकिन हो जाएगी। भद्रवा, बनी बस, होली, लखनपुर टनल बन गया तो ये एक मुतबादिल नेशनल हाईवे बन जाएगा। कांग्रेस के साबिक एमएलसी नरेश कुमार गुप्ता ने कहा कि तामीराती काम का ऐलान हुए 7 साल गुजर चुके हैं मगर लोगों को सिर्फ ख्वाब दिखाए जा रहे हैं। दिफाई नुक्ते नज़र से इस मंसूबे की काफ़ी अहमियत है। इस मामले में जनाब के मफादात को अवामी तौर पर और भद्रवा की तरक्की के उमूर को खुसूसन नुकसान पहुंचा है। अवाम को उम्मीद है कि टनल मंसूबे पर काम जल्द ही शुरू किया जाएगा। टनल बनने से छतरगला, भद्रवा और बनी के बीच फासला 36 किलोमीटर तक घट जाएगा। सितम ज़रीफ़ी ये है कि लोगों को जानकारी फराहम करने के लिए यहाँ एक साइन बोर्ड लगाया गया है जिसके मुताबिक तामीराती कामों का आगाज हो चुका है। किसी को मतलब कोई कारोबार नहीं है, दुकानदार यहाँ का परेशान है, मजदूर तबका यहाँ का परेशान है। अब एक उम्मीद जागी थी कि शायद बीजेपी की गवर्नमेंट ये टनल का काम जो कि अप्रूव हुआ है आज तक, लेकिन 7 साल में सर इसकी कोई ईंट नहीं लगी है, कुछ भी नहीं है। वहाँ पर एक बोर्ड लगा था सर, वो भी उखाड़ दिया गया है। फर्स्ट नंबर पर तो ये है कि यहाँ की कनेक्टिविटी डायरेक्ट कनेक्ट करेगी सिंथन रोड के ज़रिए कश्मीर को, जो ये अल्टरनेटिव रोड है। चूँकि आप देख रहे हो हमारी ये बिल्कुल सक्सेसफुल नहीं है, क्लियर कट हो चुका है कि जो सर्वे की गई है इस रामबन के सेक्टर में वो बिल्कुल गलत की गई। प्रैक्टिकल ग्राउंड पे कुछ हो तो पता लगे, हम भी सराहना करें कि नहीं जी, हम वेलकम करेंगे इनको कि यही करवा के दें। अब तो लोग एक तरह से बददिल हो गए हैं कि शायद ये कभी टनल बनेगा भी कि नहीं, क्योंकि बीजेपी से बड़ी उम्मीदें थी लोगों को कि फाइनली अब ये टनल बन जाएगा। लेकिन अभी तक 50 साल का अरसा बीतने के बाद और बीजेपी की जो 7 साल है जिसमें उन्होंने टनल अनाउंस किया था, तो इस बनने की कोई अभी तक दिखता नहीं कुछ, क्योंकि अनाउंसमेंट होती है हर 2 महीने के बाद, एक पोस्ट आती है डॉक्टर जितेंद्र सिंह की कि मैं इससे मिला, फलां से मिला, बीआरओ के चीफ से मिला या सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर से मिला और बात की मैंने फंड्स रिलीज़ करने की, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हो पाया। हमें उम्मीद है कि फाइनली जो है लोगों की उम्मीदों को प्लीज़ टूटने ना दें और इस टनल का कहीं अगर बन जाता है तो बहुत अच्छा होगा। 2014 में आए तबाहकुन सैलाब ने कुलगाम में वेशु नाले पर मौजूद कई पुलों को तबाह कर दिया है। तब से कई इलाकों के राब्ते मुनक़ता हैं। आड़िजन में पानी के तेज़ बहाव ने डायवर्जन को तबाह कर दिया है। इलाके नूराबाद, दमहाल, हाजीपुरा जिला हेडक्वार्टर से मुनक़ता हो चुका है। राब्ता सड़कें न होने से बीमारों और ख़ासकर स्टूडेंट्स को तरह तरह की मुश्किलात का सामना है। लोगों ने ज़िला इंतज़ामिया से अपील की है कि वो नाले पर डायवर्जन की मरम्मत कराए। करोड़ों रुपयों से तामीर हो रहे नए पुल के काम को तेज़ रफ्तारी से मुकम्मल करने की आवाम ने मांग की है। R&B में असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रियाज अहमद परे ने बताया कि डायवर्जन के लिए टेंडर्स आज ही निकाले गए हैं, तमाम काम तेजी से चलेंगे। रोड कोलगोम यप डायवर्जन गो विर पे 20 किलोमीटर कर सफर, यप 1 किलोमीटर गई हादत कल मज कि यूता पुरसान कहीं वह गुजारिश हुकूमत यह कर कि मेहरबानी तो मेहरबानी कर दिन तोतान डायवर्जन योतान
पन कदल तैयार गस अत कम चलान चलान कदलस कम मगर यथ लग वरिया कूद काला यपर तारान छठ बार अस नानकी 20 किलोमीटर दूर अस लड़क पड़ान यम शुर वड़ इन मुश्किल गसान अत ना कानून ना डेवर्शन वन नौ कदल तैयार गसन अत लग वरी। बांडीपुरा में आज बनकोट ब्लॉक से वाबस्ता पंचायती नुमाइंदों ने बीडीओ बनकोट के खिलाफ एहतजाज किया। बीडीसी चेयरमैन बशीर अहमद बाबा की क़यादत में किए गए इस एहतजाज के दौरान पंचायती नुमाइंदों ने इल्ज़ाम लगाया कि बीडीओ बनकोट के तर्ज अमल पर पूरे ब्लॉक में कामकाज ठप है। उधर एडीडीसी बांडीपुरा अली अफसर खान का कहना है कि पंचायती नुमाइंदों को उनके साथ राब्ता कायम करना चाहिए ताकि इस मसले को हल किया जा सके। में जो स्टाफ है सब बीडीओ की वजह से बैठा हुआ है सर, हमारा कोई भी काम नहीं हो रहा है सर। हमारी एक बिल है सर बैक टू विलेज की 2019 में हमने काम किया सर, बिल बनी हुई है सर, पैसे आए हुए हैं वो बीडीओ के अकाउंट में सर। बीडीओ साहब को हमने जब सर बिल डाली सर तो वो बोला कि हम कल मैं छोड़ दूंगा, उसके बाद हम गए बोला एफिडेविट लिख के ले आओ सर, एक पैसा भी हमारा बिल भी बनी हुई, फिर सर हम इसमें बहुत सर मजबूर हो गए। वीडियो ने बड़ी प्रॉब्लम की है ब्लॉक में, उसके बारे में मैंने आगे कमिश्नर सेक्रेटरी को भी, गवर्नर को भी, डी साहब को भी, अपने एसडी साहब को, वो कोई नहीं है जिसके बारे में इसके बारे में लिखा है कि भाई ये इसको ट्रांसफ़र करे क्योंकि ब्लॉक हैंग हो रखा है। अगर ऐसा है तो दे शुड कम टू माय ऑफिस, या वो मुझसे अभी तक कोई किसी ने बात नहीं की है तो मैं देख लूँगा क्या इश्यूज़ हैं उनके। अगर वो मेरे पास आते हैं या कोई मुझे फ़ोन कॉल ही करते हैं, मुझे कन्वे करते हैं। जिला शोपियां के गगरा इलाके में पुलिस की गाड़ी पर कम शिद्दत का धमाका करने वाली आईईडी फेंकी गई थी। डिग्री कॉलेज गगरा के करीब बयाग में रखी गई आईईडी पुलिस गाड़ी की तरफ फेंक दी गई थी। बाद में इस आईईडी को नाकारा बना दिया गया। सरकारी ज़राए के मुताबिक आईईडी 6 किलोग्राम की थी। मामले में तहक़ीक़ात का आगाज कर दिया गया है। कुपवाड़ा कस्बे में जुज़वी लॉकडाउन को लेकर ट्रेडर्स फेडरेशन कुपवाड़ा के चेयरमैन शौकत मसूदी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। उन्होंने सरकार के इस फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि मार्केट बंद रखने से कोविड पर कंट्रोल नहीं हो सकता है, बल्कि ये दुकानदारों के साथ ज्यादती है। उन्होंने कहा कि मार्केट में लोगों का एक सैलाब फिर भी नजर आता है। उन्होंने फैसले पर नजरसानी की मांग की। ये इससे पहले डिस्ट्रीब्यूट होती थी 4000 दुकानों में, अब ये 2000 दुकानों में ही महदूद रह गई और मुझे नहीं लग रहा है कि इसका कोई मकसद निकल रहा है। उस भीड़ से इस कोविड बीमारी का फैलाव ज़्यादा होगा। हम एडमिनिस्ट्रेशन से और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश करते हैं कि इस पे गौर किया जाए ताकि जो मकसद है वो सामने आ जाए। कस्बे पामपुर में तहसील ऑफिस के सामने श्रीनगर जम्मू शाहराह पर मामूली बारिश के साथ ही शाहराह ज़ेर आब आती है। इसकी वजह से लोगों को सफ़र करने में मुश्किलात का सामना है। मकामी लोगों का कहना है कि कई बार इंतज़ामिया के नोटिस में लाने के बावजूद अभी तक ये मसला हल नहीं हुआ। उन्होंने इंतज़ामिया से इस मसले को जल्द हल करने की अपील की है। जो वाटर लॉगिंग हो रही है कई सालों से हो रही है, हमने कई बार इसको गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की नोटिस में लाया है, बट इसकी तरफ आज तक कोई ध्यान नहीं दिया गया है। हम आज भी अपील कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन, मौजूदा जो एडमिनिस्ट्रेशन है उससे अपील कर रहे हैं कि इसका कोई सद्भाव निकालिए या इसको सो दैट का ड्रेन आउट हो जाए, क्योंकि यहाँ पे हमें दिक्कत हो रही है चलने में। ये जो हाईवे है आप देख रहे हैं, ये हाईवे है, गाड़ियों का आमद रफ्ती ज़्यादा है, लोगों का आमद रफ्ती ज़्यादा है, चलने फिरने में बहुत दिक्कत हो रही है। गोरीपुरा बमई सोपोर के लोगों को पानी जमा होने से मुश्किलात का सामना है। गांव के बीच बह रही आबपाशी नहर ब्लॉक होने से पूरा गांव ज़ेर आब आ गया है। मकामी लोगों का कहना है कि जब भी बारिश होती है तो उन्हें नालियां पार करने में काफ़ी मुश्किलात का सामना होता है। पूरे इलाके में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो जाती है। लोगों का कहना है कि कई मरतबा मुतल्लिका हुकाम से नाले की साफ सफाई करने की दरख्वास्त की गई मगर कुछ नहीं हुआ। गोरीपुरा बमई लोगों ने इस मसले की जानिब फौरी तवज्जो देने और नाली की सफाई अंजाम देने की अपील की है। उनका कहना है कि आबादी का एक बड़ा हिस्सा इससे मुतासिर हो रहा है।
गुलशनाबाद गुलनार पार्क सेक्टर नंबर 10 के मुकीनों ने इंतजामिया के खिलाफ खामोश मुजाहरा किया। इलाके में ड्रेनेज का मुनासिब निज़ाम फराहम करने में नाकामी पर यह एहतजाज किया गया है। लोगों का कहना है कि हल्की सी बारिश के बाद पूरा इलाका ज़ेर आब आ जाता है। बारिश के पानी की निकासी का किसी तरह का निज़ाम नहीं है। लोगों ने बताया कि बारिश के मौसम में उन्हें परेशानियों का सामना है, वो घरों से बाहर नहीं निकल पाते। लोगों ने बताया कि सड़क पर 3 फुट तक पानी भरा हुआ होता है। यहाँ जंगी खतूत पर सही अंदाज में ड्रेनेज सिस्टम तामीर करने की लोगों ने गुजारिश की है। ये कहता है कि हमारे पास फंड्स अभी नहीं आ रहे हैं, जो ही फंड्स आएंगे तो आपकी तरफ ध्यान दिया जाएगा, आपका ये ड्रेनेज सिस्टम जो है वो ठीक किया जाएगा। रिक्वेस्ट करते हैं कि कम अज कम हमारी तरफ ध्यान देकर म्यूनसिपल कमेटी आए फिर डी सबन इंशाल्लाह यो करो मगर गो न घरों में जवाब बचान बच्चे स्कूल हेकान पे नखस तुल बच्चे अदर से हमारी जो ये नज़रअंदाज न किया जाए। जैसे कि इससे पहले भी हम बार बार एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाते थे, लेकिन कोई काम आज तक नहीं हुआ है। अब यही है कि नए जो डीसी साहब आए हैं और जो नए हमारे जो ये म्यूनसिपल कमेटी के जो सदर आए हैं, तो उनसे यही गुजारिश है कि हमारे जो ये काम में ये शॉर्ट नोटिस में किया जाए। जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस के 1937 नए मुस्बत केसेस सामने आए हैं। कश्मीर से 1091 और जम्मू से 846 नए केसेस दर्ज किए गए हैं। उधर कोरोना मुतासरा मरीजों की अमवात की शरह में भी मुसलसल इजाफा हो रहा है। जम्मू कश्मीर में मजीद 19 मरीजों की मौत हो गई है। कश्मीर में 6 और जम्मू में 13 कोरोना मरीजों की मौत हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1019 मरीज सेहतियाब भी हुए हैं। यूटी में अब 16,993 एक्टिव केसेस हैं। मरकजी जामा मस्जिद पुंछ के इमाम मौलाना मोहम्मद फारूक मिसबाही ने कोविड का टीका लगवा लेने की लोगों से अपील की है। उन्होंने कहा कि वैक्सीन लेने से किसी भी सूरत में रोजा नहीं टूटता। उन्होंने वबा से बचाव के लिए टीका लगवाने की अहमियत और अफादियत समझाने पर जोर दिया। नहाता है ना तो इंसान के बाल ही यहाँ मसाम रहते हैं, उनके जरिए भी इंसान के बदन के अंदर पानी जाता है, लेकिन उससे रोज़ा टूटता नहीं है। तो ये जो इंजेक्शन है ये मनफज की तरह नहीं, ये मसाम की तरह है। लिहाजा कोई भी आदमी अगर किसी तरह का भी इंजेक्शन लगवा लेता है, इसके अलावा भी या ये वैक्सीन का, ये जो कोरोना वैक्सीन का हो या उसके अलावा कोई भी इंजेक्शन लगाने से रोज़ा बिल्कुल नहीं टूट सकता। बिला कराहत बिला झिझक इंजेक्शन लगवा सकते। ये गुजारिश करूँगा कि इस वक्त कोरोना की मारामारी है, आप देख रहे हैं कि बड़े बड़े मुल्क इसके सामने जो है उन्होंने हथियार डाल दिए हैं। तो एक तो एहतियाती तदाबीर जिस तरीके से डॉक्टर बताते हैं उनके ऊपर अमल पैरा हों, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो वैक्सीन लगवाएं, और ताकि इसके ज़रिए रोकथाम हो सके, क्योंकि इससे जो है वो बदन के अंदर एक दिफाई क़ुव्वत का इजाफा होता है, जिससे ये बीमारी इंसान को काफ़ी हद तक इंसान से दूर रहती है। कोरोना के बढ़ते मामलात के मद्देनजर त्राल इंतजामिया ने कस्बे में दुकानों और दीगर इदारों को ऑड इवन फार्मूले के तहत खोलने की हिदायत जारी की है। म्यूनसिपल कमेटी, पुलिस और महकमे माल के एहलकार सुबह से ही लोगों को मास्क और दीगर एहतियाती तदाबीर अपनाने पर जोर दे रहे थे। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कि ऑड इवन फार्मूला शुरू होनी चाहिए, तो इस बारे में हमने 8 तारीख को 8 दुकानों को खोलने की इजाज़त दी है। आज सुबह सवेरे ही ये टीम निकली है, पूरी मार्केट में चेकिंग की है और ऑड इवन फार्मूला को इम्प्लीमेंट किया है। इसके अलावा हमने लाउड स्पीकर्स के ज़रिए लोगों को अवेयर किया है कि मास्क कितनी ज़रूरी है, डिस्टेंस कितनी ज़रूरी है, क्योंकि जो वेव है इस वक्त वायरस की वो बहुत ही तेज़ हो रही है, दिन ब दिन स्पाइक हो रही है इसमें। इसकी वजह से लोगों को भी हमने अवेयर किया है कि क्या क्या तदाबीर। पुंछ में भी दुकानें रोटेशन की बुनियाद पर खोली जा रही हैं। एक दिन किराना शॉप, दूसरे दिन कपड़ों की दुकानें और एक दिन किताबों के अलावा कॉस्मेटिक्स की दुकानें खोली जा रही हैं। अदविया, सब्जी, हलवाई और गोश्त की दुकानें हर रोज खुलेंगी। ताहम दुकानदारों ने तशवीश जाहिर करते हुए कहा कि आधी दुकानें खोलने के बावजूद लोगों की भीड़ कम नहीं हो रही है। एक सामान लेने के लिए 4 लोग बाजार न आने की आवाम से अपील की गई है। अभी मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट का हम वेलकम करते हैं, जो गवर्नमेंट ने आधी दुकानें ऐसी खोली हैं, आधी ऐसी खोली हैं, लेकिन वो अच्छी बात है। लेकिन लोगों को भी चाहिए कि जो रास्ते जो आते हैं एक एक आदमी सामान चाहिए, तो एक ही आदमी है, एक के साथ 4 आदमी नहीं आना चाहिए। बाजार में गैदरिंग हो जाती है, बाजार में लोग ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं, जिससे फिर हमारी बाजार लाटो लगने का खतरा बढ़ जाएगा हमारे यहाँ। आपकी जान है, सब कुछ सलामती है, इसलिए मेरी सभी लोगों से गुजारिश है कि खुद, और इसके अलावा जो दुकानदार भाई हैं, मैं खुद दुकानदार हूँ,
ये हमारी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। जो हमारी दुकान जो लोग आते हैं रश नहीं डाले जाए इनको थोड़ा दूर रखा जाए, क्योंकि हम एहतियात करेंगे तभी हम लोगों कोविड वबा के चलते और 50% दुकानें बंद रखने के अहकाम के मद्देनजर कुछ लोगों ने गैर कानूनी तरीके से फायदा कमाना शुरू कर दिया है। राजौरी में तहसील ऑफिस के सामने कुछ एजेंट 10 रुपए का स्टैंप पेपर 100 रुपए में बेच रहे हैं। इस सूरत हाल से लोग काफी परेशान हैं। लोगों का कहना है कि नाजायज फायदा उठा रहे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये दिया 100 रुपए का, फिर लिखाई का मैंने 100 उसने लिया, 200 रुपया 10 रुपये पेनल्टी का लिया। 10 रुपये का अगर 200 में आ रहा है तो लूट नहीं और क्या है। कोविड केसों में अचानक इजाफे के बाद करगिल इंतजामिया ने तमाम तालीमी इदारे बंद कर देने का ऐलान किया है। 26 अप्रैल से तमाम तालीमी इदारे 1 महीने तक बंद रहेंगे। जम्मू और श्रीनगर से इन दिनों करगिल वापस आने वाले मेहनतकशों की आमद के मद्देनजर यह कदम उठाया गया है। करगिल में 15 दिनों में 102 कोविड केसों की निशानदही होने के बाद जिले में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। डीसी संतोष सुखदेव ने अहकाम जारी किए हैं। रिव्यू करेंगे जिस हिसाब से कंडीशन इंप्रूव होती है कि स्कूल शुरू करने या नहीं करने। अगर हमें लगता है कि सिचुएशन इंप्रूव हो रही है तो हम स्कूल को फिर से क्लास को रिज्यूम भी कर सकते हैं, या फिर फार फ्लंग एरियाज में जहाँ पे बिल्कुल कोई लेबर नहीं जा रहा है या बाहर से कोई लोग नहीं आ रहे, वहाँ पे भी हम स्कूल्स को स्टार्ट करने की परमिशन दे सकते हैं। लेकिन अभी के लिए एज अ प्रिकॉशनरी मेजर हमें ये फैसला लेना पड़ा, तो इसमें मैं चाहता हूँ कि आप सब हमारा साथ दें। इसके साथ ही जिस हिसाब से कोविड की सिचुएशन पूरे हिंदुस्तान में चल रही है, मैं आप सबसे अपील करना चाहूँगा कि जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, जैसे मास्क पहनना, सामाजिक दूरी बनाए रखना और बिना वजह बाहर आने जाना कम करना, वो सारी चीज़ें आप फॉलो करें। सीपीआईएम के सीनियर लीडर एमवाई तारिगामी ने अपने रफीक कॉमरेड अब्दुल हमीद के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत किया है। तारिगामी ने कहा कि अब्दुल हमीद मरहूम एक अजीम लीडर थे। उन्होंने हमेशा किसानों, गरीबों और बेसहारा लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम किया है। तारिगामी ने अपने ताज़ियती पैगाम में कमज़ोरों की आवाज़ बने रहने के लिए अपनी काविशें जारी रखने का अज़्म किया। रहो उनकी खातिर जो वॉइसलेस हैं, जिनका कोई तरफदारी करने वाले बहुत कम रहे हैं। मैं आज मेरे पास कुछ नहीं कहने के लिए सिवाय यही कि एक बहुत ही बड़ा मेरा रफ़ीक मुझसे जुदा हो गया। एक खला हुआ मेरे जहन में भी, मेरे दिल में भी, जिसे पूरा नहीं किया जा सकता। और मैं वचनबद्ध हूँ ये कहने के लिए अपने आवाम के साथ, जिस रास्ते पर वो चले आज तक, मज़लूमों की खातिर, महकूमों की खातिर, किसानों की खातिर, उसी रास्ते पर उन्हीं की तरह आखिरी सांस तक हम भी कायम रहेंगे, चलते रहें। जिला रामबन में नई बस्ती इलाके के वार्ड नंबर 6 में एक गरीब शख्स सजाद अहमद शेख के घर पर मुबैना तौर पर उनके हमसायों की जानिब से अचानक हमला किया गया। घर को मुकम्मल तौर पर गिराया गया है। सजाद अपने छोटे बच्चों समेत खुले आसमान के नीचे आ गया है। हमले के वक्त घर पर सिर्फ 2 खवातीन और उनके छोटे बच्चे थे। आईनी शाहिदीन के मुताबिक 10-12 अफराद ने घर तोड़ने के लिए हमला किया। मुतासरा खातून ने पुलिस थाना रामबन में शिकायत भी दर्ज कराई। उन्होंने ताहम पुलिस पर मुलजिमीन के साथ नरम रवैया बरतने का इल्जाम लगाया है। उन्होंने एसएसपी रामबन से मुलजिमीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की अपील की है। बताया जाता है कि सरकारी अराजी का बहाना बनाकर भारी बारिश के दौरान ये मकान गिराया गया है। जी हमारा मकान तोड़ दिया। चाय पी रहे थे बच्चे अंदर, उनको भी मार दिया था। बड़ी मुश्किल से बच्चों को बचाया है हमने। फिर बहुत बदतमीजी उन्होंने किया। 2 औरतें थे हम घर में, 2 औरतों के साथ उन्होंने बहुत बदतमीजी की। मकान भी तोड़ दिया, हमारे बच्चों को भी मारना चाहते थे, कपड़े शपड़े फाड़ दिए हमारे। बदतमीजी हरकत पे आए थे बहुत मुश्किल से। अगर उधर आसपास के गाँव वाले नहीं आते, बेइज्जत कर देते वो हमको। सरजीत था और भी उसके साथ लड़के थे बहुत, उनका नाम मुझे पता नहीं है। जी केस दिया है थाने में, अभी उधर कोई कार्रवाई हमारी नहीं हो रही है। हमें इंसाफ मिलना चाहिए। हम दर बदर है बच्चे लेके, हमारे पास रहने के लिए मकान नहीं है। बारिश में कहाँ जाएंगे हम बच्चे लेके। ये कोई गुंडा लोग थे, एक बलवाई, जिन्होंने ये अपना वो बलवाई रूप दिखाया। ये गरीब लोग वहाँ पे रह रहे थे, 30-40 साल के अरसे से वहाँ पे रह रहे हैं। गरीब लोग हैं, झोपड़ी जैसे तैसे बना कर रखी थी। इनके बाल बच्चे घर में थे, औरतें घर में थी। इनका जो वाहिद एक लड़का है वो कहीं काम से गया हुआ था। वहाँ वो गेंती, बेलचा वगैरह, दराट हाथ में लेकर
वो बिल्कुल एकदम उतारू थे उसमें कि उसको तहस नहस करने में। करीब कोई 5 मिनट के अंदर अंदर इसमें इन्होंने उसकी झोंपड़ी को तहस नहस कर दिया। वहाँ पे कुछ नामालूम शख्स आए जिन्होंने आकर सुबह इनके घर में तोड़ फोड़ की और इनका घर का पूरा सामान जो भी था वो सब बिखर दिया उन्होंने, और घर में जो भी कुछ था, औरतें थी, बच्चे थे, सबको मारपीट की। और इसमें सर एक सुरजीत सिंह हैं जो कि पुलिस के रिटायर हैं, वो भी इनके साथ में थे, और साथ में इनके 10-12 आदमी और भी थे। तो सर जब हम मौके पे पहुंचे, हम लोगों ने इनको रोका भी, हमने कहा भाई आप कानूनी कार्रवाई करो, लेकिन ऐसे गरीब लोगों पे जुल्म मत करो। लेकिन सर इन लोगों ने हर बात से इनकार किया और इन्होंने अपनी जो कार्रवाई थी वो जारी रखी। जिला उधमपुर में 2014 के सैलाब मुतासरीन को पूरे 7 साल बाद अपने ख्वाबों का घर मिल चुका है। राइट्स ने कॉर्पोरेट समाजी जिम्मेदारी के तहत ये प्रोजेक्ट पूरा किया है। उधमपुर के रुकन पार्लिमान जितेंद्र सिंह की हिदायत पर यह काम अंजाम दिए गए। सदर इलाके में 50 लाख रुपए के सरफे से 10 पक्के मकान मुतासरीन के लिए बन चुके हैं। हर मकान में एक कमरा, बावर्ची खाना और बरंडा है। हर मकान के वॉशरूम अलग से बनाए गए हैं। चैन सिंह ने मकान मिलने पर चैन की सांस ली है। इस खित्ते में जमीन खिसकने के सबब 40 लोग मलबे में दब गए थे। 2014 को यहाँ पे लैंडस्लाइड आया था। ये हमारा गांव जो पूरा था दरबदर हो चुका था। कोई बेचारा उधमपुर था, कोई कहीं था, रहने को किसी को घर नहीं था, खाने को रोटी नहीं थी। अगर गवर्नमेंट ना होती, भारत सरकार ना होती, तो क्या हम में से आधे लोग ना होते। गवर्नमेंट की बदौलत, कुछ NGOs की बदौलत उन्होंने हमारे सर पे हाथ रखा। किसी ने खाना प्रोवाइड किया, किसी ने कंबल प्रोवाइड किया, किसी ने कुछ किया। फिर और भारत सरकार की तरफ से हमें 10 घर जो है वो बना के दिए। लद्दाख के एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस सतीश खंडारे ने DIG लेह करगिल रेंज के हमरा KBR एयरपोर्ट पर बंदोबस्त का मुआयना किया। यहां लाए जा रहे लेबर्स की स्क्रीनिंग के लिए मौसर इंतजामात किए गए। CISF कमांडर ने मजदूरों की टेस्टिंग और उनके रजिस्ट्रेशन के हवाले से हुकाम को ब्रीफिंग दी। ADG पुलिस उशी स्क्रीनिंग पॉइंट को भी गए। यहां मेहनत कशों की आइसोलेशन, रिहाइश और दीगर जरूरतों का इंतजाम किया गया है। लाचू नगला पास में बर्फ में फंसे हुए 27 लोगों को बचाया गया है, जिस पर ADGP लद्दाख ने SHO पुलिस स्टेशन नायुमा और टीम की 27 की। लेह मनाली रोड पर ये रेस्क्यू ऑपरेशन अंजाम दिया गया है। BRO टीम से मदद ली गई। बचाए गए लोगों में ट्रक ड्राइवर्स, हेल्पर्स और 2 मुल्की सयाह शामिल है। ये लोग इलाके में भारी बर्फबारी के सबब फंस गए थे। बीमार पड़ गए लोगों को पुलिस ने सरगर्मी के साथ प्राइमरी हेल्थ सेंटर मुंतकिल किया। तमाम लोगों की हालत अब बेहतर बताई जा रही है। कुपवाड़ा जिले में लाइन ऑफ कंट्रोल पर आबाद मसल इलाके में फौज ने आर्मी गुडविल स्कूल राघवन में एक तकरीब का इनेकाद किया। फौज ने मसल स्काउट्स के शहीद गुलाम नबी और शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल राघवन को खराज अकीदत पेश किया। बारिश और बर्फबारी के बीच AGS राघवन स्कूल में तकरीब के दौरान फौज, सिविल इंतजामिया और पुलिस के अफसरान के अलावा तलबा ने भी शिरकत की। तमद्दुनी प्रोग्राम भी पेश किए गए। हुब्बुल वतनी के गीत गाए गए। प्रोग्राम की शुरुआत तिरंगा लहराने और कौमी तराने के साथ हुई। फौज ने स्कूल को हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी कराई है। शहीद गुलाम नबी ट्रॉफी इशरत हबीब को दी गई। स्पोर्ट्स में मोहम्मद यूसुफ को ट्रॉफी दी गई। फौज ने मसल सेक्टर के दिए इलाकों दोबान, बाला और हाजी मोहल्ला जैसे दीगर सरहदी गांवों में शजरकारी मुहिम चलाई। वर्ल्ड अर्थ डे के मुनासबत से ये प्रोग्राम चलाए गए हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के इशराक से फौज ने लोगों में अखरोट और चिनार और दीगर अकसाम के पौधे तकसीम किए। आर्मी गुडविल स्कूल रघवान के स्टूडेंट्स भी शजरकारी मुहिम में शामिल रहे। जिला किश्तवाड़ के छास और छात्रों में लेवेंडर की काश्त का काम शुरू हो चुका है। इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन जम्मू के इशराक से फौज ने इसकी काश्त के लिए आगही कैंप का एहतमाम किया। किश्तवाड़ के भंद्राकोट में मुनक्किदा प्रोग्राम में किसानों की खुशबूदार पौधों की काश्त के मुख्तलिफ पहलुओं पर जानकारी दी गई। किसानों के सेल्फ हेल्प ग्रुप की तश्कील करके उन्हें पौधों से मशीनों के जरिए खुशबूदार तेल कशीद करने के गुर बताए गए। हाल ही में पुलवामा में लार नाले में मुसलसल बारिश से आई तोक़यानी से काफ़ी नुकसान हुआ है। ज़राअत तरक्याती कमिश्नर पुलवामा बसरुल हक चौधरी ने कोयला और मुल्हक़ा देहात में हुए नुकसान का जायजा लिया। DC ने महकमे फ्लड कंट्रोल के अफसरान के हमरा लार नाले पर हिफाजती बांधों को नुकसान हुए
और उसका जायजा लिया। साथ ही साथ नाले का पानी 2 हिस्सों में तकसीम करने की हिदायत दी गई। मुतासिरीन को यकीन दहानी कराएगी कि जल्द ही इंतजामिया मसले को हल करेगी। नेटवर्क 18 ये यकीन दहानी कराना चाहता है कि हर हिंदुस्तानी को कोविड-19 टीका मिले। टीकाकारी से मुतल्लिक बेदारी पैदा करने के लिए नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की पहल अ शॉट ऑफ लाइफ को सपोर्ट करे। हेल्थ एक्सपर्ट अपोलो 24/7